ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ निकल गई ਆ। पाइल्स जो होती है, गुदा में जलन, दर्द रहना, खून आना, ये बवासीर के लक्षण है। और फिशर भी होता है गुदा में, मलद्वार में लैटिन टाइट आने से कब्ज के कारण गुदा छिल जाती है जिससे कि दर्द, चलन, ब्लीडिंग होना आम बात है। किसी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਆਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜलन बहुत ਹੁੰਦੀ ਆ। डिजीज नहीं है, काफी गंभीर प्रॉब्लम है। पाइल्स के अलावा गुदा में फिशर भी हो सकता है, फिशला भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है जी, एब्सेस फोड़ा भी हो सकता है जी। हाँ जी। मशीन की है? देखो जी, जर्मन मशीन जो आप ये देख पा रहे हैं, IRC बोलते हैं जी, उसको। जी वाली मशीन, ये नीचे वाले IRC की गारंटी देंगे, लिखित में हम गारंटी देंगे, दोबारा कभी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कभी दोबारा प्रॉब्लम होते बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाएगा जी। ये गारंटी 5 साल 10 साल 20 साल की नहीं है, गारंटी हमारी जीवन भर की है। साइन करके देते हैं सर। वाकई ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ देखो जी, ऑपरेशन इज द नॉट प्रमाण सॉल्यूशन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਸਪਤਾਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਜੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਵਾਸੀਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਾਵਾਸੀਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਸ ਨੂੰ ਬਾਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਨੇ MI ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hello, I'm Dr. Amar Shah. I'm spinal specialist and also general physician. ਜੀ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਹੇ ਟੀਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪਾਇਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ निकल गई ਆ। वाकई इदां दा कुछ हुंदा है? बिल्कुल सर। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जो आप हमें देख रहे हैं लाइव, उनको नमस्कार करना चाहूँगा। और हम एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, बवासीर, फिशर, बगंदर के बारे में। पाइल्स जो होती है, गुदा में जलन, दर्द रहना, खून आना, ये बवासीर के लक्षण है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਗੁਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਗ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? साथ में जैसे मौके बन जाते हैं, मलद्वार में मौके बन जाते हैं, जिससे पेशेंट का लैट्रिन का रास्ता साफ नहीं होता, लैट्रिन खुल के नहीं आती, कब्ज की दिक्कत रहती है। और मौके बाहर आने के कारण पेशेंट को दर्द, चलन, SNA पेन काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि पेशेंट को चलना फिरना बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है पेशेंट के लिए। और फिशर भी होता है गुदा में, मलद्वार में लैटिन टाइट आने से कब्ज के कारण गुदा छिल जाती है जिससे कि दर्द, चलन, ब्लीडिंग होना आम बात है।
ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਆਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਲਨ बहुत होती है। ਉਹਦਾ ਕੀ हाल हो उसका सकता है? रीजन ही है सर, देखो रीजन कई होते हैं, गुदा में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जी। बेसिकली पेशेंट हमारे पास आते हैं बेसिकली पाइल्स, नॉर्मल समझते हैं बवासीर है, पर ये कोई नॉर्मल डिजीज नहीं है, काफी गंभीर प्रॉब्लम है। पाइल्स के अलावा गुदा में फिशर भी हो सकता है, फिशला भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ठीक है जी, एब्सेस फोड़ा भी हो सकता है जी। हाँ जी, या प्रोक्टैक्टिस हो सकता है, लैट्रिन से सुकड़ जाता है, उसको भी बोलते हैं प्रोक्टैक्टिस। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ? देखो जी, जर्मन मशीन जो आप ये देख पा रहे हैं IRC बोलते हैं जी, उसको। ये वाली मशीन, ये नीचे वाले IRC, इसमें इंफ्रारेड कोंगुलेशन। ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ? बिल्कुल श्योर, ये वाली, ये नीचे वाली जर्मन मशीन है। ये इंफ्रारेड कोंगुलेशन होता है इसे। जी। इसे किरणों द्वारा ना, जैसे मस्से पे बेसिकली किरणें पड़ती हैं और जो मस्सा होता है सूख के खत्म हो जाता है। मस्सा मतलब मौका हाँ जी जी। और ये पूरी तरह से पेनलेस ट्रीटमेंट है। ये सुविधा हमारे जनता पाइल्स क्लिनिक में ही अवेलेबल है। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ वाला इलाज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ टाइम की गारंटी रहेगी, लिखित में हम गारंटी देंगे, दोबारा कभी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, कभी दोबारा प्रॉब्लम होती है बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाएगा जी। ये गारंटी 5 साल 10 साल 20 साल की नहीं है, गारंटी हमारी जीवन भर की है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਮੋਹਰ? स्टैम्प डाल के साइन करके देते हैं सर। ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡ वाली की ठंडी वो मशीन है? ठंडी मशीन होती है जी, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी। उसमें जो मस्से होते हैं बेसिकली फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स या थर्ड ग्रेड या 4 ग्रेड पाइल्स के जो मौके बाहर आते हैं, उससे मस्सों से स्काई हो जाती है -180 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे मस्से वहीं कहीं सूख के खत्म हो जाते हैं। जी। हाँ जी। ਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? नहीं सर, ऐसे थोड़ा होगा आप खुद बर्फ लगाएंगे तो ऐसे ट्रीटमेंट थोड़ा, सुपर कोल्ड ट्रीटमेंट होता है सर वो जी। क्रायोथेरेपी बोलते हैं उसको हम अपनी लैंग्वेज में। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹਨੇ 20 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ देखो जी, ऑपरेशन इज द नॉट परमानेंट सॉल्यूशन, स्थायी इलाज नहीं है। ऑपरेशन में तो पेन ज्यादा होता है और उससे पेन होने के कारण पेशेंट को ब्लड लॉस ज्यादा होता है, ठीक है, और पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता है, काफी दिन तक दर्द का सामना करना पड़ता है, और रेडियोकैटिव इंजेक्शन लगने के बाद फिर जैसे एज बढ़ती है, सीनियर सिटीजन होते हैं, पेशेंट को पेन भी ज्यादा रहता है, और ये ऑपरेशन के बाद फिर भी रिकरेंस होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन दिया जाता है, विदाउट सर्जरी हम ट्रीटमेंट करते हैं ਜੀ। जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਥ੍ਰੈਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥ੍ਰੈਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ हाँ ਵਰਤਦੇ जी हैं? बिल्कुल श्योर, वो मेडिकेट थ्रेड होता है क्षार सूत्र। क्षार सूत्र, हाँ जी, क्षार एक दवाई का नाम होता है हमारे आयुर्वेद में। किसी में 21 भावनाएं, किसी में 28 भावनाएं दी जाती है, यानी कि भावना का मतलब 21 दिन में तैयार किया जाता है, 28 दिन में तैयार किया जाता है। उस पे लेप लगा होता है आयुर्वेद का। हमारे जैसे यपचार क्षार है, अपमार क्षार है, शिन्यू क्षीर है, ये हल्दी हरित की बोल सकते हैं, उस पे लगी होती है, जो कि पाइल्स मास पे लैगेट कर दिया जाता है, जिससे 2 या 3 दिन मस्सों को सुखा के निकाल दिया जाता है, निकल जाते हैं, और लाइफ टाइम की गारंटी होती है। ये WHO ने भी माना कि क्षार सूत्र से बेस्ट ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं है। ऑपरेशन आप 2 बार करें, 3 बार कर, बार बार रिकरेंस होगा, बार बार कराना पड़ता है इसमें। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਥ੍ਰੈਡ? बिल्कुल, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, क्षार सूत्र के बारे में पढ़ सकते हैं काफी। हम खुद तैयार करते हैं उसको, बाजार में डुप्लीकेट भी मिलते हैं, बने बनाए भी आते हैं, पर हम खुद तैयार करते हैं उसको अपने तरह से। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, लैगिट कर देते हैं, जिससे कि 2 दिन में मस्से सूख के झड़ जाते हैं। और इसके अलावा हमारा और अच्छा ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ, जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें कुछ पेशेंट को हम क्षार सूत्र नहीं कर सकते, जो ऑपरेशन नहीं करा सकते, या कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहता भाई पेनफुल, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ छल्ले होते हैं, रबड़ के छल्ले, जो कि मस्से है, जैसे मस्सा है उसमें हम डाल देते हैं। उसमें ना पेशेंट को सुनकर नहीं जरूरत पड़ती, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया जरूरत नहीं पड़ती, ना पेशेंट को एडमिट की जरूरत पड़ती। फिर भी हम मुश्किल से ट्रीटमेंट करने के बाद 15 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रख लेते हैं पेशेंट को, उसके बाद पेशेंट
ट्रीटमेंट करा के घर पे जा सकता है, पूरी तरह से पेनलेस ट्रीटमेंट है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸੁੱਤਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, इस चीज की हमारी गारंटी है। देखो जी खैरा साहब, अभी तक हमने 5 से 6 लाख पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है, अभी तक तो कोई कृपा से कभी प्रॉब्लम आई नहीं है। आगे के लिए अगर कोई दिक्कत आती है तो हम निःशुल्क ट्रीटमेंट देंगे। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ। देखो जी मार्केट से सभी डॉक्टर बैठे हैं, सभी का ट्रीटमेंट अलग अलग है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है भाई, सब अपना ट्रीटमेंट करते हैं, कोई दवाई से करते हैं, अगलों की दुकानदारी चली, मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, हमारा एम है पेशेंट की मानव सेवा करना पहले। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ? देखो जी मेरा मानना ये है, जो पेशेंट देख नहीं सकता या भाई दृष्टिहीन है, भगवान ने उनने भैया ऐसा भी जैसा भी है उसके लिए हमारे बिल्कुल निःशुल्क ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि पूरा आर्थिक स्थिति से कमजोर होता है, ठीक है, एजुकेशन होती नहीं उनके पास, फीस वो पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री इलाज दिया जाएगा, निःशुल्क, बिल्कुल कोई फीस नहीं ली जाएगी दृष्टिहीन लोगों के लिए। ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? देखो जी पेशेंट को जो फिशर रहता है ना, फिशर में इतना पेन ज्यादा होता है, उसमें दर्द जलन, पेशेंट खाना भी नहीं खाते, कई और पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब 5 दिन से खाना नहीं खाया। मैं भाई क्यों नहीं खाया आपने? मैं डॉक्टर साहब मैं तो इतना घबराता हूँ कि अगर मैं खाना खा भी लूंगा तो सुबह जाऊंगा, लैट्रिन जाना पड़ता है, पास होता है, जब लैट्रिन टकराएगी जख्म से, ठीक है, उसमें फिशर बनेगा, फिशर से अल्सर बनेगा, अल्सर से फिर कैंसर भी बनेगा, और दर्द भी ज्यादा रहता है उसमें जी, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है ना, ये सेंसिटिव एरिया, ना धूप लगती, हवा लगती, पानी वैसे नहीं लगता, गंदी जगह आप कितनी सफाई करो फिर भी गंदा ही रहेगा ये। ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हेयर ग्रोथ भी ज्यादा ਹੁੰਦੀ ਆ। देखो जी दो साफ सफाई तो रखनी चाहिए, ये नहीं कि एनल केनाल की है, पूरी बॉडी अच्छे से वॉश करनी चाहिए, साफ सफाई का तो ध्यान पूरी बॉडी का ही रखना चाहिए, हाइजीन रखो, साफ सफाई का ध्यान रखो, ठीक है, साफ करने के बाद टिश्यू पेपर से साफ करो उसको, हेयर रिमूव रखो, ये जरूरी है जी, ये चीज जी। हाँ जी। ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਈਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ हाँ ਹੈ, तो मॉइस्चराइजर लगाइए ना, थोड़ा क्रीम लगाइए, ऑयल लगाइए, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। ਕਿਹੜੀ प्रॉब्लम हो रही है रेक्टम ਦੇ ਕੋਲ? तो जी गुदा में पाइल्स होती है, पाइल्स में 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, उसके 2 टाइप्स होते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग। ब्लीडिंग पाइल्स में मौके में बवासीर में ब्लड भरने के कारण कभी ब्लड आता है, कभी बंद हो जाता है, पेशेंट सोचता है कि वैसे ही आ रहा है, ठीक है, कुछ टाइम बाद फिर मस्से फटते हैं, फिर ब्लड आता है, बंद हो जाता है। मौके जो बाहर आते हैं वो तो पेशेंट को नजर आ जाते हैं, जो अंदर होते हैं वो नजर नहीं आते, तो छोटी मोटी दवाई लेके आराम मिल जाता है, फिर ऐसे लापरवाही करने से फिर आगे चल के कैंसर का सामना करना पड़ता है जी। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਲੋਕੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। देखो जी काफी मैं आपके चैनल से माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, हमारे पास पेशेंट आते हैं मोस्टली लुधियाना, पंजाब, पूरे इंडिया से आते हैं पेशेंट हमारे पास, बिल्कुल शोषण होने के बाद आता है, छोटे मोटे डॉक्टरों से, फर्जी डॉक्टरों दवाई से लेने से, या सबसे बड़ा आजकल जो क्रेज चला ऑनलाइन का चला हुआ है, ऑनलाइन से फेसबुक के माध्यम से आप खोले पाइल्स डालेंगे तो कम से कम 100 मेडिसिन आ जाएंगी, यूट्यूब उठा के देख लीजिए, गूगल उठा के देख लीजिए, मेडिसिन की आपको पूरी लंबी लिस्ट आ जाएंगी। कोई कहेगा जो 2 दिन में जड़ से खत्म करे, कोई 7 दिन में जड़ से खत्म करे, कोई कह रहे हैं कि एक खुराक में जड़ से खत्म, वो सब फेक बातें हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है पेशेंट से दवाई के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं, डॉक्टर से मिला जाता नहीं है, दवाई मिलती है, पेशेंट खा लेता है, आराम नहीं मिलता, फिर दूसरी जगह अटैक करते हैं, फिर तीसरी जगह करते हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है पब्लिक को कि ऑनलाइन मेडिसिन बिल्कुल बहिष्कार करें ना। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਆ, ਫਿਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਬਗੰਦਰ ਆ? देखो जी अगर पाइल्स बनने के बाद तो उसका ट्रीटमेंट ही कराना जरूरी है, तो उसके लिए आप हमारे सेंटर पे आए, हम प्रोटोस्कोपी करते हैं, दूरबीन से जांच करते हैं, जो जांच आपकी बाहर होती है 5-6 हज़ार रुपए में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, वो हमारे मात्र 200 रुपये
जांच होती है। वो स्लिप वाले पैसे हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सेवा के लिए प्रोटोस्कोपी इधर हमें देख लेते हैं कि कौन से ग्रेड की पाइल्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जो पेशेंट नहीं देख पाता है, डिजिटल जांच जो हम करते हैं। और फिशर है, फिस्टुला है, कौन से क्लॉक पे है, जैसे हमारे यहाँ पे देख रहे हैं क्लॉक है ये 3 क्लॉक पे पाइल्स मास है, 7 पे है, 11 पे, ये फिशर तो नहीं है। वो सारी चीज हम आइडेंटिफाई करके पेशेंट को हम बता देते हैं भी ये प्रॉब्लम है, इसका प्रोसीजर हमारे ये हुआ ट्रीटमेंट का जी। अच्छा ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਸਤਾ देखो जी हमारे और हॉस्पिटलों की अपेक्षा बहुत सस्ता इलाज है, रीजनेबल चार्ज है। बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात की जाए 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक भी ले लेते हैं, वो हमारे यहाँ लूट नहीं है बिल्कुल भी। हमारे यहाँ जो भी रीजनेबल चार्ज होता है बीमारी के अनुसार ही होता है, वो भी अकॉर्डिंग टू डिजीज। ਅਕੋਰਡਿੰਗ हाँ जी। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल देंगे जी। जो हमारा उसमें हम क्या होता है, हमारी फीस जो होती है हम वो नहीं लेते पेशेंट से, पर जो हमारा भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो प्रोसीजर का है, मेडिसिन का है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत हम चार्ज लेते हैं, बाकी और कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लेते पेशेंट से। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਓਗੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ करना चाहिए जो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है? देखो उसमें ऐसी चीज होती है जैसे अंडा है, लाल मिर्च है, गरम मसाला, अल्कोहल है, सबसे पहले उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। शाम के टाइम फाइबर डाइट ज्यादा लें जिससे लैट्रिन स्टूल सॉफ्ट आए, सॉफ्ट आएगा तो पेन भी कम होगा पेशेंट को। और जिस पेशेंट को प्रॉब्लम है तो आप हमसे आगे संपर्क करें, उसका इलाज कराएं प्रॉपर तरीके से ਜੀ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਜਿਕ ਡਰਿੰਕ ਆ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਫਰੂਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਈਸਬਗੋਲ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। देखो जी इसवगोल जो होता है प्रॉपर तरीके से लोगों को लेने का तरीका नहीं पता। इसवगोल की भूसी आती है और आयुर्वेद में इसका वितरण है पूरा, उसको पानी में भिगो के रखा जाता है सुबह के टाइम में, और शाम को गर्म दूध के साथ लिया जाता है, जिससे कि अंदर जो सोप लेने के बाद पानी वो अंदर हमारे छोटे बड़े आते हैं पानी ऐसे छोड़ता है, जिससे कि लैट्रिन गल के बाहर आ जाती है, स्टूल क्लियर हो जाता है। मतलब ईसबगोल फायदेमंद है? फायदेमंद है। गूंद कतीरा फायदेमंद है? फायदेमंद इसवगोल से अच्छा कुछ नहीं है सर, ईसबगोल से कुछ नहीं अच्छा। पर जो उन चीजों के लिए जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जिनको प्रॉब्लम बन चुकी है उनको तो इलाज होगा ही सर जी। ਵਾਕਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਟਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਿਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो जी मेरी आपसे यही अपील है, जिसको अगर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, क्योंकि आप हमारा देख रहे हैं काफी पेशेंट आ रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, ये हमारा जो हॉस्पिटल है उत्तर भारत का पहला बवासीर अस्पताल है, वही 45 वर्ष से आपकी सेवा में हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ दूर से आए पेशेंट के लिए रुकने की, खाने की, रहने की और प्राइवेट रूम की, एम्बुलेंस की सब सुविधा हमारे यहाँ दी जाएगी निःशुल्क। निःशुल्क है, बिना पैसे तो। हाँ जी बिल्कुल निःशुल्क है। बाकी जो हमारा चार्ज होता है भाई, जैसे आप इंजेक्शन ट्रीटमेंट कराते हैं, स्क्लेरोथेरेपी भी करते हैं हम, या लेजर ट्रीटमेंट चाहते हैं, या ठंडी मशीन वाला है, वो हमारे यहाँ उसका थोड़ा बहुत जो हमारा हॉस्पिटल का वो चार्ज रीजनेबल लेते हैं, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। सत श्री अकाल।